بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رستے کوز اگر قسط نمبر 22 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ عائشہ اختر جب سے گھر آئی تھیں اسی پریشانی میں مبتلا تھیں کہ بلال اختر کو سب کچھ کیسے بتائیں، حالانکہ کئی بار انہیں موقع بھی ملا۔ بلال اختر نے آفس سے گھر آتے ہی عائشہ اختر کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا، مگر ان کے استفسار پر کچھ نہ کہہ سکیں، یہاں تک کہ بلال اختر نے انہیں کریدا بھی بہت، کیونکہ انہیں معلوم تھا وہ آج ڈاکٹر شکیلہ سے ملنے گئی تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر شکیلہ نے؟ بلال اختر کے سوال پر عائشہ اختر صرف ان کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ایک جنگ چل رہی تھی ان کے اندر، اگر انہوں نے خود سے نہیں بتایا تو ڈاکٹر شکیلہ خود فون کر کے بتا دیں گی، مگر زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ بولیے نا، ایسا کیا کہتی ہے ڈاکٹر شکیلہ نے جو چہرے کا رنگ فاق ہو گیا ہے؟ بلال اختر گلے میں پڑی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے طنزی انداز میں بولے تو عائشہ اختر ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کیا کریں گے جان کر؟ کون سا آپ کو ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہے؟ عائشہ اختر کے بگڑے ہوئے انداز پر بلال اختر ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگے۔ اب کیا فرما دیا انہوں نے؟ کیا زوبیہ کی شادی فوراً کر دینے کا مشورہ دے رہی ہیں؟ بلال اختر جتانے والے انداز میں بولے کہ مجھے بخوبی یاد ہے کہ ڈاکٹر شکیلہ نے اس کی شادی کرنے دینے کا مشورہ دیا تھا۔ عائشہ اختر کھول کر رہ گئیں۔ ایک تو پہلے ہی ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی بلال اختر کچھ بتانے کی، اب تو ان کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا بلال اختر ڈاکٹر شکیلہ کی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اسے فوراً پاگل خانے بھیج دیں گے۔ بلال اختر ان کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ کر رسانیت سے کہنے لگے، آپ کو کیا لگتا ہے عائشہ، زوبیہ کی شادی کر دینا اس کی بیماری کا علاج ہے؟ تو پھر اس کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ کیا ساری زندگی سے گھر بٹھا کر رکھنا ہے؟ عائشہ اختر رکھ کر بولی، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی اس کی شادی کر دینا اس پر ظلم ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس لڑکے پر۔ بلال اختر نے ٹائی ایک جھٹکے سے گردن سے کھینچ لی تو عائشہ اختر بھی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تو زوبیہ کا ماحول بدلنے کے لیے آپ اپنے کام میں سے 2-3 دن کا وقت نکال لیں اور اسے یہاں سے کہیں دور لے چلیں۔ اگلے 6 مہینے تک تو ایسا ممکن نہیں، اس کے بعد کوشش کروں گا۔ بلال اختر نے صاف انکار کر دیا۔ ان 6 مہینوں میں آپ کی اور اگلے 6 مہینوں کی مصروفیت نکل آئے گی، کیونکہ آپ اس کے لیے وقت نکالنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ عائشہ اختر غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئیں، مگر ان کا کمرے سے نکل جانا بات تو ختم نہیں کر دیتا۔ اگلے دن حسب معمول بلال اختر آفس سے جلدی گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر پہلی سنجیدگی دیکھ کر عائشہ اختر ٹھٹک گئیں۔ ذہن میں فوراً ڈاکٹر شکیلہ کا خیال آیا تھا، تبھی ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ زوبیہ کہاں ہے؟ سوال بھی خلاف معمول تھا۔ عائشہ اختر دل کڑا کر کے پوچھنے پر مجبور ہو گئی، اپنے کمرے میں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ذرا بلوانا اسے۔ مگر بات کیا ہے؟ کیوں بتاؤں میں آپ کو جب آپ مجھے کچھ نہیں بتاتی؟ ڈاکٹر شکیلہ نے فون کیا تھا مجھے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا بے خبر ہوں، اور وہ سمجھ رہی تھی کہ میں انجان نظر آنے کی اداکاری کر رہا ہوں۔ بلال اختر دل ملا کر بولے۔ عائشہ اختر بغلیں جھانکنے لگی۔ بلال اختر نے خاموش دیکھ کر زوبیہ کو آواز دینے لگے کہ عائشہ اختر نے ٹوک دیا، اسے بلا کر کچھ پوچھنے کا فائدہ نہیں، وہ خود بہت ڈسٹرب ہے۔ تو کیا تمہاری طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں اور وہ لوگوں کو قتل کرتی پھرتی رہے؟ بلال اختر نے دانت پیسے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ زوبیہ نے کسی کو قتل نہیں کیا، نتاشا کی موت ایک حادثہ تھی، پولیس پریس سب یہی کہہ رہے ہیں۔ عائشہ اختر تڑپ کر بولی، اگر یہ ایک حادثہ تھا تو زوبیہ کو اس حادثے کے متعلق کیسے پتہ چلا؟ زوبیہ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اسے بلا کر پوچھنا بیکار ہے۔ عائشہ اختر میں نہیں، جواب تو آپ کے پاس بھی کسی سوال کا نہیں ہے، آپ سے بھی بات کرنا بیکار ہے، ورنہ جس عورت کی جوان جہان بیٹی گھر سے کالج کا کہہ کر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتی پھرے، اس عورت کو تو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ بلال اختر کا ذہن میں بجھا جملہ عائشہ اختر کو تیر کی طرح لگا تو وہ بھی انہی کے انداز میں بولی، وہ سڑکوں پر کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی، گھر کے پچھلے حصے میں بنے سرونٹ کوارٹر میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ ڈاکٹر شکیلہ نے یہ نہیں بتایا آپ کو؟ بلال اختر ان کے تنک کر بولنے پر مزید سیخ پا ہو کر بولے، اتنی آسانی سے یقین کر لیا آپ نے اس کے فضول بہانے پر، جو کبھی آپ کو خود بتایا کرتی تھی۔ ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا عائشہ اختر کے منہ پر
और इनका सारा गुस्सा और खौलन बैठती चली गई थी। वो दर्जीजा नज़रों से बिलाल अख्तर को देखती चली गई। इनका खामोश हो जाना बिलाल अख्तर भी महसूस कर गए थे। खुद इन्हें भी कहने के बाद एहसास हुआ था कि वो गलत बात कह गए हैं, लेकिन उस वक्त इतने गुस्से में थे कि शर्मिंदा होना इन्हें गवारा नहीं था। अलबत्ता अपनी बात का असर ज़ाहिर होने के लिए वो बड़बड़ाते हुए कहने लगे, ज़ुबिया का पागलपन बढ़ रहा है। पहले इसने रख्सार पर हमला किया और अब नताशा पर। खुदा का शुक्र है अभी तक ज़ुबिया पर कोई पुलिस केस नहीं बना, लेकिन अगर यही हालात रहे तो वह वक्त दूर नहीं जो वो जेल में होगी। तो क्या आप सोच रहे हैं कि जेल के बजाय मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए? आयशा अख्तर कितनी देर बाद बोलने के काबिल हुई थी, वो भी महज इसलिए कि वो जल्द अज जल्द ये जान लेना चाहती थी कि बिलाल अख्तर का आगे क्या इरादा है। इनके सवाल पर बिलाल अख्तर ने खा जाने वाली नज़र से इन्हें देखा था। इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजकर मुझे सारी दुनिया को खुद पर हंसाना नहीं है। बिलाल अख्तर बिस्तर के किनारे पर बैठ गए तो फिर आयशा अख्तर की तरफ थोड़ा इत्मीनान हुआ। जहाँ वहाँ एक नई फिक्र ने आन घेरा कि आखिर फिर बिलाल अख्तर ने क्या सोचा है। इनके पूछने पर बिलाल अख्तर फौरी तौर पर कुछ नहीं बोले, बल्कि एक गहरी सांस खींचकर किसी सोच में डूब गए। आयशा अख्तर बदस्तूर इन्हें देखती रही तो आखिर बिलाल अख्तर सर उठाकर इनकी आंखों में देखते हुए सर्द से लहजे में बोले, अगर डॉक्टर शकीला ने कहा है ना कि ज़ुबिया का माहौल तब्दील करें, इसके लिए वक्ती तौर पर कहीं जाने के बजाय मुस्तकिल तौर पर चले जाते हैं। क्या मतलब? आयशा अख्तर की समझ में खाक भी नहीं आया। जो शख्स कुछ दिनों के लिए बिजनेस नहीं छोड़ सकता, वो मुस्तकिल तौर पर कहीं जाने के लिए कैसे रजामंद हो सकता है? मतलब ये कि हम घर तब्दील कर लेते हैं। आयशा अख्तर की आंखें हैरानी की शिद्दत से फैल गईं। कितनी देर वो दोनों बगैर कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। आखिर आयशा अख्तर अटकते हुए बोली, आप ये घर छोड़ देंगे? सिर्फ छोड़ेंगे नहीं, बल्कि हम इस घर को बेच देंगे। बिलाल अख्तर साबका अंदाज में बोले। आयशा अख्तर की बेयकीनी बढ़ती जा रही थी। कितनी ही देर तक वो कुछ कहने के काबिल ही ना हुई। इनकी कैफियत महसूस करते हुए बिलाल अख्तर खुद ही जिरा करने वाले अंदाज में बोले, इतनी हैरान क्यों हो रही हैं आप? हमारी एक जवान बेटी को पागल खाने भेजने की नौबत आ चुकी है। क्या आप अब भी इसी घर में रहना चाहती हैं? बिलाल अख्तर सवालिया नज़रों से इन्हें देखते रहे, मगर आयशा अख्तर कुछ भी बोलने के बजाय शिद्दत से खड़ी रहीं। पता नहीं वो दोनों कब तक बोलने के काबिल ना होते कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर ज़ुबिया कमरे में दाखिल हो गई। इस पर नज़र पड़ते ही बिलाल अख्तर तो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए, जबकि आयशा अख्तर खाली खाली नज़रों से इसे देखने लगी। ज़ुबिया इनकी हालत बखूबी समझ रही थी। जब बिलाल अख्तर ने इसे पुकारा था, वो कमरे के सामने से ही गुजर रही थी, इसलिए जैसे ही इसने कमरे में दाखिल होने के लिए दरवाजे का हैंडल पकड़ा, अंदर से आती आवाज़ों ने इसका पूरा वजूद सुन कर दिया। डॉक्टर शकीला इसे पागल खाने में भर्ती करना चाहती हैं क्योंकि इसने नताशा को कत्ल किया था। एक अजीब सा खौफ इसके वजूद में सरायत कर गया। इसका दिल चाह रहा था यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, जहाँ कोई ना हो। डॉक्टर शकीला, इसके वालिदैन, इसके कॉलेज का स्टाफ और इसमें पढ़ने वाली लड़कियाँ। कुछ देर वो कांपते वजूद के साथ खड़ी इनकी गुफ्तगू सुनती रही। आखिर जब बिलाल अख्तर ने घर बेचने का फैसला सुनाया, तजुर्बे से रहा ना गया तो दरवाज़ा खटखटाकर अंदर आ गई। पापा मैंने कुछ नहीं किया। आपको अपना बाई घर बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। दादा ने कितने शौक से ये घर बनवाया था। ज़ुबैर ने वो सब कुछ देखा तो नहीं, अलबत्ता सुना ज़रूर था। इस घर की तामीर तो बिलाल अख्तर के भी पैदा होने से पहले हुई थी, लेकिन असर तामीर बिलाल अख्तर की शादी के बाद तक होती रही थी। कभी इतने साल गुजर जाने के बावजूद ये घर बिल्कुल जदीद और नई तर्ज पर बना नजर आता था। खूबसूरत और शानदार घर बेच देना कोई अक्लमंदी नहीं थी, वो भी सूरत में जिससे हजारों यादें वाबस्ता हों। ज़ुबिया की बात पर बिलाल अख्तर तो कुछ नहीं बोले, अलबत्ता आयशा आवाज़ बहाल करते हुए कहने लगी, ज़ुबिया ठीक कह रही है। घर बेचने के बजाय हम किराए पर दे देते हैं और कुछ दिनों बाद वापस इस घर में। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। इतना बड़ा घर किराए पर चढ़ाना आसान नहीं है। फिर किराएदार घर साफ करके अचानक छोड़ देते हैं तो दोबारा नए किराएदारों को घर देने से पहले घर की आज सरेनो मरम्मत करानी पड़ती है। इतनी दर्दसरी से बेहतर है इंसान घर बेच दे और सुकून से रहे। बिलाल अख्तर बड़े ही हुए अंदाज में बोले तो आयशा अख्तर तो खामोश हो गई, लेकिन ज़ुबिया को कहना पड़ा, पापा घर बेचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे भी मालूम है तुम्हारी शाइस्ता खाला का भूत तुम्हारे साथ साथ
इस घर से दूसरे घर चला जाएगा, वहाँ भी तुम्हारी ज़हनी हालत यही रहेगी। लेकिन डॉक्टर शकीला कुछ दिनों के लिए खामोश ज़रूर हो जाएंगी, वरना अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो मैं तुम्हें पागल खाने भेजने पर बाजिद रहेंगी। बिलाल अख्तर के कोड़े से भी कारी जर पर मुश्तमिल अल्फाज सुनकर ज़ूबिया की आंखें डबडबा गईं। आयशा अख्तर इनके चाहरान अंदाज पर इन्हें गुस्से और बेबसी से देख कर रह गईं। ज़ूबिया की तरफ बढ़ना चाहती थी ताकि इसे तसल्ली दे सकें, मगर ज़ूबिया तेज़ी से पलट कर कमरे से निकल गई। पहले तो इसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ी, फिर इरादा तक करते बिलाल अख्तर की तरफ मुड़ गई। घर बेचने का फैसला आपने डॉक्टर शकीला के दबाव में आकर नहीं किया है, बल्कि आप खुद इस घर से आजिज आ गए हैं। आप सिर्फ अपनी गलती का कफ़ारा अदा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस घर को बेचने से हमारा कफ़ारा अदा नहीं होगा। इस घर को अगर आप मुफ्त में भी किसी को दे देंगे तब भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। आयशा अख्तर ऐसे बोल रही थी जैसे अंगारे चबा रही हों। बिलाल अख्तर सुख होते हुए चेहरे के साथ इन्हें देखते रहे। वो नहीं चाहते थे कि आयशा अख्तर इस मौजू पर मज़ीद कुछ कहें। चुनांचे इन्हें खामोश रखने के लिए बिलाल अख्तर हाथ में पकड़ी टाई बिस्तर पर फेंकते हुए बाथरूम में घुस गए। अपने गुस्से का इजहार करने के लिए उन्होंने पूरी कुव्वत से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया था। इधर रोमिला की शादी इतनी नज़दीक के रखी गई थी कि नमल और उसकी वालदा भी हैरान रह गई थी। नमल क्योंकि वो रोमिला के एहसास से भी जानती थी, चुनाचे से ज़्यादा दुख हुआ था, मगर वो इसकी वालदा रशीदा कर ही क्या सकती थी। रोमिला की वालिद इनकी बराह रास्त रिश्तेदारी नहीं थी। रोमिला की वालदा मरहूम अजमत खलील की बहन थी, जिनके इंतकाल के बाद बस रस्मी सी बातचीत रह गई थी, और कुछ अर्से तक अजमत खलील की बेतहाशा मसरूफियत की वजह से रस्मी ताल्लुक भी कमज़ोर पड़ता जा रहा था। रोमिला की बात तय होने पर भी अजमत खलील नहीं जा सके थे। सिर्फ रशीदा नमल के साथ शरीक हो गई थी। इन दोनों की हैसियत बस मेहमानों जैसी थी। वो इनके घर के मामले में भला क्या बोलती। और फिर रशीदा ने रोमिला को उल्टा समझाने की ही कोशिश की थी कि लड़कियों के ऐसे अचानक शादियां होती ही हैं, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं। पूरा और वाकई यही तसल्ली देकर इन सब ने खुद को मुतमईन कर लिया था। नवल हस्बे मामूल शाम की चाय रशीदा के साथ लॉन में बैठी पी रही थी जब इसके मोबाइल पर सुंबल की कॉल आ गई। नवल, तुमने तो कहा था शाम नामी वो लड़का अपने गांव चला गया है, जिसे पुलिस ने किसी नाकर्दा जुर्म पर गिरफ्तार किया था। सुंबल की हैरान परेशान आवाज़ सुनकर खुद नवल भी उलझ गई। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रही हो? टीवी पर नहीं देख रही? एक लड़का जिसका नाम हशाम है, पुलिस इंस्पेक्टर कादिर के इंसान सोच तशद्दुद का शिकार होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सुंबल की बात पर नमल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसकी बहन और बेवा माँ के ये बयान चल रहे हैं जिसमें वो कह रही हैं इनका बेटा पिछले 1 माह से पुलिस की हिरासत में है, मगर पुलिस रिकॉर्ड में इसका कहीं नाम मौजूद ही नहीं था। वो दोनों से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गई थी। तब अजमत खलील के तवसत से पता चला कि वो लड़का इंस्पेक्टर कादिर जैसे वहशी शख्स के हत्थे चढ़ गया है। सुंबल बगैर सांस लिए बोल रही थी। दूसरी तरफ नमल का अपना सांस भी सीने में अटक गया था। सुंबल की गुफ्तगू में पीछे चलते टीवी का शोर भी वाज़ेह तौर पर सुन सकती थी। टीवी पर इस खबर के नशर होते ही सुंबल ने इसे फ़ोन किया था। नमल तेज़ी से अंदर की तरफ दौड़ी। टीवी ऑन करने पर इसके रहस्य अवसान भी खता हो गए। स्क्रीन पर बिला शक व शुबा वो शुमाइला इसकी माँ थी। न्यूज़ चैनल वाले इंस्पेक्टर कादिर के वहशी रवैये की कहानी सुनाते हुए बार बार शुमाइला इसकी वालदा का आंसू से तर चेहरा फोकस कर रहे थे। मोबाइल अभी भी नमल के कान से लगा था। वो तवातुर से बोलती सुंबल को सुन रही थी, जो हर तफसील के बाद एक ही सवाल पूछ रही थी। या तुमने तो कहा था अंकल ने इसे छुड़वा लिया है, अंकल ने तुमसे झूठ क्यों बोला? सुंबल, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। नमल ने बमुश्किल अपने मुंतशिर होते जहन को यकजा करते हुए तेज़ी से कहा और सुंबल को बोलने का मौका दिए बगैर फ़ोन काट दिया। इसने टीवी पर तफसीलात जानने की कोशिश करने के बजाय इसी वक्त अस्पताल जाकर शुमाइला से 2 टोक बात करने का फ़ैसला कर लिया था। वह जैसे ही गाड़ी की चाबियाँ लेकर घर से निकली, रशीदा को बमुश्किल व्हील चेयर चलाकर घर की तरफ आता देखकर बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। वो इन्हें कुछ भी बताए बगैर ऐसे उठकर भाग आई थी। वो बुरी तरह परेशान हो गई थी। पहले तो इसका इंतज़ार करती रही, फिर खुद ही अंदर आने की कोशिश करने लगी। दरअसल घास पर व्हील चेयर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती थी, इसलिए नमल कभी इन्हें कच्ची ज़मीन पर व्हील चेयर चलाने की नहीं देती थी, बल्कि खुद ही धकेलती हुई लाती थी।
इस वक्त भी इन पर नजर पड़ते ही नमल तेजी से इनकी तरफ बढ़ी और करीब पहुंचते ही इनके पूछे बगैर बताने लगी। रशीदा भी ये सुनकर दंग रह गई, फिर भी हिचकिचाते हुए बोली, इस वक्त जाओगी? उन्होंने शाम के साए गहरे होते देखकर तफक्कुर से कहा। तो नमल भी एक नज़र खुले आसमान पर डालते हुए कदर बेबसी से बोली, मेरा शमाइला से मिलना बहुत ज़रूरी है। हशाम की हालत बहुत सीरियस है। रशीदा सिर्फ इसे देख कर रह गई। खुद इनकी हालत ये सब सुनकर अजीब सी हो गई थी। वो इसे जाने से रोक ना सकी। खुद नमल को भी देर होने का एहसास था। तभी वो तेज़ी से ड्राइव करती महज आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मगर वहां मौजूद सहाफ़ियों का रश इसे शमाइला तक पहुंचने नहीं दे रहा था। खुद शमाइला की ही इस पर नज़र पड़ी तो इसके नज़दीक आ गई। इसे अपने करीब आता देखकर नमल ने अच्छी तरह चादर से अपना चेहरा छुपा लिया। वो नहीं चाहती थी कि शमाइला के बाइस साफ़ी इसकी तरफ भी मुतवज्जा हो जाएं। इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी अखबार और टीवी की जीनत बनने की। आप कब वापस आई दुबई से? शमाइला ने करीब आते ही बड़ी बेचैनी से पूछा। नमल जवाब देने के बजाय सवालिया नज़र से इसे देखने लगी, जो बेख्तियार इसका हाथ थामते हुए रूहानी लहजे में बोली, देखें ना आपके पीछे क्या हो गया। आप तो हमें सीधा अजमत खलील के ऑफिस ले गई थी और इनसे मुलाकात करा दी थी। आपके जाने के बाद अजमत खलील साहब से मुलाकात ही नहीं हो सकी। इतनी मुश्किलों से इनसे बात हुई। तब उन्होंने फ़ौरन हशाम के बारे में पता चलाने की कोशिश की, मगर देखें ना इस बीच हशाम की हालत क्या से क्या हो गई। इस इंस्पेक्टर कादिर ने बिल्कुल 3rd डिग्री टॉर्चर किया है मेरे भाई पर। कांस्टेबल का कहना है कि हशाम ने तो इंस्पेक्टर को कुछ कहा भी नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों कि इंस्पेक्टर कादिर को अचानक इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने बिल्कुल दरिंदों की तरह हशाम को धो कर रख दिया। शमाइला एकदम रो पड़ी। नमल खामोशी से इसे सुने गई। इसके वालिद ने अगर इसे इस मामले से दूर रखने के लिए ये सब कहा था, तब भी इनका शमाइला से झूठ बोलना तो बनता था। मगर नमल से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? ताकि वो मुतमईन होकर खामोश हो जाए। लेकिन जब इन्हें शाम की मदद करनी ही नहीं थी तो इतना वक्त क्यों ज़ाया किया? इन्हें कौन सी आने जाने की ज़रूरत थी? इन्हें तो सिर्फ फ़ोन घुमाने थे। फिर क्यों ऐसे किया उन्होंने ऐसा? नमल का जहन मुख्तलिफ सवालों की हमा जगह बना हुआ था। वो शमाइला को झूठी तसल्ली भी ना दे सकी, बल्कि जबकि प्रेस के लोग शमाइला को नमल के करीब देखकर खुद भी इसके इर्द गिर्द जमा होने लगे और इसकी बाबत सवाल करने लगे। शमाइला ने इतना ही कहा था कि ये अजमत कि नमल ने इसका हाथ दबाकर इसे खामोश कर दिया। मैं शमाइला की दोस्त हूँ, नमल ने महज इतना कहा और शमाइला को कोने को एक तरफ होते हुए बोली, शमाइला मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, मैं चलती हूँ। शाम के इलाज पर जो भी खर्च आए, पैसों की तो कोई परवाह नहीं है। आपके वालिद ही सारा खर्च कर रहे हैं, बस वो ठीक हो जाए। शमाइला के लहजे में बेबसी घुली थी। नमल ने कुछ कहना चाहा तो एक लड़की जो किसी टीवी चैनल की रिपोर्टर थी, हाथ में माइक लिए नमल के करीब चली आई। क्या आप शमाइला की दोस्त होने के हैसियत से शाम के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? वो किस किस्म का लड़का था? इसकी क्या मसरूफियत थी? और जो इसके साथ हुआ है, इस पर आपके क्या तासुरात हैं? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, नमल जानबूझकर नहायत खुरदरे लहजे में बोली और शमाइला से कुछ कहे बगैर तेजी से आगे बढ़ गई ताकि रिपोर्टर मजीद कोई बात ना कर सके। मगर इसके वहाँ से हट जाने के बाद वो रिपोर्टर शमाइला से नमल के मुतालिक बात करने लगी। शमाइला की तरफ से इसे इत्मीनान था, वो इसका तारुफ नहीं कराएगी। अलबत्ता वह शाम के बारे में जानना चाहती थी, जो इन सहाफ़ियों की वजह से हो नहीं सकता था। मगर गाड़ी में बैठने तक इसके पास रशीदा का फ़ोन आ गया। अम्मी मैं हॉस्पिटल से निकल रही हूँ, पौन घंटे में घर आ जाऊँगी इंशाल्लाह। हाँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारे अब्बू ना आ जाएं। वैसे तुम्हारी मुलाकात हुई है शाम से? कैसा है वो? अम्मी इससे कैसे मुलाकात होती? इतने सहाफ़ी मौजूद हैं यहाँ पर और वो तो शायद आईसीयू में होगा। नमल ने कार स्टार्ट करते हुए तअस्सुफ़ से कहा तो रशीदा भी गुलगुल लहजे में बोली, हाँ और वो बात करने के काबिल भी कहाँ होगा। यहाँ टीवी पर बता रहे हैं इसकी एक बोन पर शदीद चोटें आई हैं। वो शायद अब ज़िंदगी भर बिस्तर से उठने के काबिल ना हो सके। नमल का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर पड़ गया तो वो भी पार्किंग एरिया से निकली नहीं थी, इसीलिए नुकसान नहीं हुआ। वरना जिस तरह इसने ब्रेक लगाए थे, अगर सड़क पर होती तो अच्छा खासा एक्सीडेंट हो जाता। एक किस्म के मलाल ने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो मुश्किल रशीदा को अल्लाह हाफिज़ कहकर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने के काबिल हुई थी। घर आकर इसका जहन बहुत मुंतशिर रहा। इसने रशीदा को भी टीवी नहीं देखने दिया।
जहाँ चैनल्स वाले एक ही खबर को बार बार सुना रहा था। अलबत्ता एक चीज़ वो इस वक्त नहीं देख सकी थी, वो इसने अपने अब घर आकर देखी, और वो थी अजमत खलील की प्रेस से गुफ्तगू। जिस वक्त शाम को अस्पताल ले जाया गया था, इस वक्त अजमत खलील भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने बड़े जज्बाती और ड्रामाई अंदाज में इंस्पेक्टर कादिर और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ बयान देने के साथ साथ हशाम के माजूर हो जाने पर बड़े गम का इजहार किया था। इनके क्लिप्स बार बार दिखाए जा रहे थे, जबकि नमल को डॉक्टर ने क्लियर करने से पहले ही अजमत खलील का हशाम को माजूर करार दे देना एक अजीब सी अजियत से दो चार कर रहा था। इसलिए इसने रशीदा को टीवी बंद करने का लिए कह दिया। वो खुद भी जाने किस ट्रांस में देखी जा रही थी, वरना दिल तो इसका भी बहुत बुरा हो रहा था। नमल के कहते ही उन्होंने टीवी ऑफ कर दिया। अजमत खलील रात को काफ़ी देर से घर आए थे, मगर नमल इनके इंतजार में जागती रही। रशीदा बार बार इसे ताकीद करती रही, देखो तुम्हारे बाप ने ही इसे निकाला है, बिला वजह बदगुमान मत हो। वो नहीं चाहते होंगे तुम इस मामले में इन्वॉल्व करना, तभी तो तुमसे झूठ बोल दिया। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि बेटी ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में पड़े, और तुम्हारी फितरत का इन्हें पता है। सच बताने पर तुम चुप होकर नहीं बैठ जाती। नमल चुपचाप इनकी बातें सुनती रही। इसने कोई तबसरा नहीं किया। वो जानती थी इसकी माँ अजमत खलील की बेजा हिमायत कर रही है। इस बात का इस इल्म इसे खुद भी है। वो सिर्फ नमल को ठंडा रखने के लिए ये सब कह रही हैं, वरना हकीकत इन्हें भी इस बात का इल्म है कि अजमत खलील ने जानबूझकर इस मामले में चश्मपोशी की है, वरना अगर वो मुतहरिक होते तो शाम का पता चलने में इतनी ताख़ीर नहीं होती। अब वो भले इस इंस्पेक्टर कादिर की वर्दी उतरवा कर रहे थे, मगर शाम और इसकी माँ बेटी की ज़िंदगी तो तबाह हो गई थी ना। आखिर रात के 10:30 बजे अजमत खलील घर में दाखिल हुए, तब भी इनके कान से मोबाइल लगा हुआ था। नमल ने इस बात की परवाह किए बगैर कि वो किससे महवे गुफ्तगू हैं, इनके नज़दीक आते ही कहा, अब्बू मुझे आपसे बात करनी है। अजमत खलील ने एक नागवार नज़र इस पर डाली और दोबारा गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। नमल चाहती थी वो इनसे बात कर लें। अगर एक बार वो अपने कमरे में चले गए तो फिर रशीदा इनके कमरे में जाने नहीं देंगी। नमल इनके घूरने की परवाह किए बगैर बदस्तूर मुंतज़िर नज़रों से इन्हें देखती रही, तो उन्होंने जैसे जिद होकर नमल को देखा और बात मुख्तसर करके खा जाने वाले अंदाज में बोले, क्या बात है, जल्दी कहो। आपने तो कहा था हशाम को पुलिस ने छोड़ दिया है और आपने इसके घर वालों को पैसे दे दिए हैं ताकि वो लोग कुछ दिनों के लिए। हाँ कहा था, मेरे ट्रस्ट के लोगों ने मुझे यही बताया था, सो वही मैंने तुम्हें बता दिया। मगर जब पता चला कि वो झूठ था तो मैंने शाम के बारे में पता किया और भला आखिर इसे जेल से निकलवा भी लिया। उन्होंने बगैर शर्मिंदा हुए निहायत ढिठाई से इतनी कमज़ोर सा झूठ बोला जिस पर नमल का कायल होना नामुमकिन था। तभी वो तंजिया अंदाज में बोली, आपके ट्रस्ट के लोग आपसे इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं क्या? इसकी इंक्वायरी के मैं बाद में कराऊंगा। रशीदा, मैं खाना खा कर आया हूँ, शरफू से कहो एक कप चाय मेरे कमरे में पहुँचा दे। अजमत खलील ने मुख्तसिर कहकर रशीदा को आवाज़ लगाते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे कि नमल इनके सामने खड़ी हो गई। अब्बू आप इस तरह नहीं जा सकते। आपने क्यों झूठ बोला मुझसे? आपका ट्रस्ट तो लोगों की मदद करने के लिए बना है। टीवी पर आपको की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कि किस तरह आप एक पुलिस वाले की सफाकी को मंजर आम पर लाए हैं। यही सब तो आपका मकसद होता है। फिर क्यों आपने शाम की मदद इस वक्त की जब हमेशा के लिए माजूर हो गया? क्या ये आप ये काम पहले भी तो कर सकते थे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं सारी नेकियां ये सब खिदमत खल्क, खबरों में आने और तारीफ बटोरने के लिए करता हूँ। अजमत खलील एकदम जलाल में आ गए, मगर नमल इनके गुस्से से ज़रा मरूम नहीं हुई। इसका अपना तनफ़ुस बढ़ता जा रहा था। वो भी जवाब में इन्हीं की तेज़ी से बोली, इस बहस को रहने दें कि आपका क्या मकसद होता है इन नेकियों और खिदमत खल्क के पीछे। आज फिर इतना बता दें कि आपने शाम के मामले में लापरवाही क्यों बरती? क्या इसके पीछे भी आपका कोई मकसद था? नमल ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मगर उन्होंने ज़रा भी तवज्जो दिए बगैर लापरवाही से कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। वो कतरा कर आगे निकल जाना चाहते थे कि नमल एक बार फिर इनके सामने आते हुए बोली, क्या मिला आपको शाम की ज़िंदगी बर्बाद करके? इसके माजूर होने के पीछे आपका क्या फ़ायदा हो सकता है? किससे बदला लेने के लिए आपने इसे उम्र भर के लिए बिस्तर पर लिटा दिया? नमल की आंखें जलने लगी थी। अजमत खलील जो एक बार फिर से नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाह रहे थे, इसकी आखिरी बात सुनकर ठिठक गए। उन्होंने एक को शमगीन नज़र इस पर डाली और दूसरी सुलगती हुई नज़र रशीदा पर डालते हुए
अंगारे चबाते हुए अंदाज में बोले, तो आखिर बता दिया ना तुमने इसे सब कुछ, कोई बात क्या तुम सिर्फ खुद तक नहीं रख सकती? अजमत खलील की बात पर गैर इरादी तौर पर नमल की नज़रें रशीदा की तरफ उठ गईं और अजमत खलील की बात सुनकर बुरी तरह बुखला गई थी। उन्होंने जिस तरह एक नज़र नमल को देखकर हकलाते हुए सफाई दी, इस पर नमल शौक में घिरी इन्हें देखी गई। कहा, क्या ऐसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला कुछ क्यों बताऊंगी? और फिर मुझे खुद कुछ नहीं पता। वो जो भरम नमल के सामने रखना चाह रही थी, इनके चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयाँ, इसका पोल खोल गया था। फिर भी रही सही कसर हजरत खलील ने खुद पूरी कर दी। अपने मखसूस तपे हुए लहजे में उन्होंने बड़ी ढिठाई से कहा, तुम्हारी माँ ने जब सब बता दिया है तो फिर ये पूछने का ड्रामा क्यों? रशीदा ने मुझे फ़ोन पर बात करते सुन ही लिया था और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर वो या तुम ये बात जान गई कि कल रात कांस्टेबल ने मेरे ही कहने पर इंस्पेक्टर कादिर को इतना वर्गलाया कि इंस्पेक्टर कादिर ने शाम का कोई कसूर ना होते हुए भी धुन कर रख दिया। और जब मुझे पता चल गया कि इसकी हालत बहुत नाजुक है, तब मैंने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके न सिर्फ हशाम को छुड़ाया बल्कि शहर से सबसे महंगे हॉस्पिटल में से दाखिल भी करा दिया। नमल शिरस्ता दे सुने गई। इसमें जैसे कुछ सुनने की सलाहियत ही नहीं रही थी। अगर हजरत खलील को इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि रशीदा ने नमल से कुछ नहीं कहा और वह सिर्फ अपने अंदाजे के मुताबिक इनसे बात कर रही है, तो ये सब इसके सामने भी कबूल ना करते। हालांकि रशीदा भी इनके मामले में नहीं बोली थी और ना ही वो चाहती थी कि ऐसी कोई भी बात नमल के इल्म में आए जो इसे हजरत खलील से मज़ीद खाइफ कर दे। मगर हजरत खलील ने बीवी पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। नहीं तो बस इनसे शिकायतें थीं। कल रात जब इन्हें अपने मैनेजर के फ़ोन करने पर पता चला कि इंस्पेक्टर कादिर हशाम पर ज़्यादा तशद्दुद नहीं कर रहा बल्कि वो इसे किसी और ही काम के लिए तैयार कर रहा है और वो मजबूर हशाम सिर्फ इसकी कैद से निकलने के लिए तैयार भी हो गया है, तब अजमत खलील के अरमानों पर जैसे पानी फिर गया। उन्होंने मज़ीद इंतज़ार करने और वक्त बर्बाद करने के बजाय मैनेजर को साफ लफ्ज़ों में समझाया कि उस कांस्टेबल के ज़रिए इंस्पेक्टर कादिर को शाम के खिलाफ इतना भड़का दें कि फौरी कोई कदम उठाए और अजमत खलील को इसकी वर्दी उतरवाने का मौका मिल जाए। ये सारी गुफ्तगू करने के बाद जब उन्होंने फ़ोन बंद किया तो कमरे के कोने में रशीदा को नमाज पढ़ता देखकर ठिठक गए, मगर फ़ौरन ही अपनी अज़ली खुदसरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ना सिर्फ इसके सर पर हर वक्त सवार होने पर रशीदा को लताड़ दिया बल्कि जो कुछ सुना इसे भूल जाने का हुक्म भी दिया, जो वो अगर ना भी देते तब भी रशीदा को यही करना था। वो एक फितरतन बहुत सीधी सादी औरत थी। दूसरे वो जो एतमाद और भरोसा था वो माजूर होने के बाद से कब का इनका साथ छोड़ चुका था। अपनी व्हीलचेयर पर इस महल जैसे घर में इधर से उधर गर्दिश करते हुए इन्हें अपनी ज़ात इस घर में रखे हुए फर्नीचर से भी ज़्यादा बेमुशर्रफ लगती थी। वो फर्नीचर तो फिर इसे भी इम्पोर्टेड था और कमरे की शान और शौकत को बढ़ा रहा था, जबकि इसका वजूद इस पेश कीमत सामान के बीच में बिल्कुल अर्जा ही था। सिर्फ एक नमल ही थी जिसकी वजह से इनके अंदर से जीने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं हुई थी। वो इस दुनिया की हर सर्द और गर्म से महफूज रखना चाहती थी, मगर अफसोस कि जब इसने होश संभाला था उसे सबसे ज़्यादा ठेस अपने वालिद की तरफ से ही पहुंची थी। इसलिए रशीदा की शऊरी कोशिश होती थी कि वो ऐसी हर बात नमल से छुपा लें जो इसकी नज़र में इसके वालिद के तासुर को ख़राब करे, मगर बचपन से ही वो इस कोशिश में नाकाम नहीं थी। हज़रत खलील ने घर से बाहर अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए जितनी मेहनत की थी वो इसकी आधी से भी आधी मेहनत घर में नहीं करते थे। बाहर वालियों पर अपना भरम कायम रखने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते, लेकिन घर में दाखिल होते वो इस चोले को इतनी बुरी तरह नोच कर उतार देते कि घर वालों के लिए इन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता। इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि पूरी दुनिया जो इनके गुण गाती है वो इस तारीफ से इनकी अपनी बीवी और बेटी ज़रा भी मुत्तफिक नहीं हैं। वो दोनों इनके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, इन्हें कतन परवाह नहीं थी। मगर रशीदा के लिए मुकाम नाकाबिले बर्दाश्त था। नमल इन्हें बेयकीनी से देख रही थी। वो इस वक्त क्या सोच रही थी ये वो बाखूबी जानती थी और यही चीज़ इन्हें अजियत में मुब्तला कर रही थी। वो इससे नज़र मिलाने के भी काबिल नहीं थी, जबकि हज़रत खलील ज़रा भी शर्मिंदा हुए बगैर शहादत की उंगली इसकी तरफ उठाते हुए नहायत सख्ती से बोले, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे मामलों से दूर रहो। वो लड़का माजूर होता है या मर जाता है तुम्हारी भला से। मैंने आज ही न्यूज़ में ऐलान कर दिया है कि इसकी माँ और बहन को इतना पैसा देने वाला हूँ
कि वो ज़िंदगी भर बैठ कर खा सकते हैं। वो लड़का अगर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तब भी इतना नहीं कमा सकता था। अजमत खलील कहकर कतरा कर इसके बराबर से निकल गए, मगर अभी वो 2 कदम ही चले थे कि नमल बदस्तूर साकित खड़े रहने के बावजूद इन्हीं की तरह ठोस लहजे में बोली, कल जब इन्हें पैसे मिलेंगे तो वो सारी रकम वापस कर देंगे। अजमत खलील इसकी बात पर ठिठक कर इसे देखने लगे तो वो साबका अंदाज में बोली, क्योंकि कल तक वही जान जाएंगे कि इनके बेटे की इस हालत के जिम्मेदार आप भी इतने ही हैं जितने कि इंस्पेक्टर कादिर। ये शायद आपका जुर्म इंस्पेक्टर कादिर से भी बड़ा है। अजमत खलील के चेहरे पर नागवारी के साथ साथ तफक्कुरात भी फैल गए थे। अलबत्ता इनके चेहरे के तासुरात देखने वो मजीद कह रही थी, मुझे अम्मी से कुछ नहीं बताया। मुझे जो भी पता चला वो या तो मेरे अंदाजे थे या अब जो कुछ आपने खुद कहा है इसके बाइस मालूम हुआ है। अब भी मैंने ये नहीं जानती कि शाम की ज़िंदगी तबाह करके आपको क्या फ़ायदा पहुंचा है। अगर इसका खबर से आप अपनी शोहरत को कोई हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो तब भी हो जाता जब शाम पहले छूट जाता, लेकिन शायद इतनी हमदर्दियाँ इस केस में इन्वॉल्व ना होती जो अब हुई हैं। बहरहाल जो भी हुआ, अगर इस इंस्पेक्टर कादिर का जुल्म मंजर आम पर आया है तो आपका भी आना चाहिए और आएगा भी। प्रेस में यह भी आएगा कि यह आपकी साजिश थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अजमत खलील भिन्ना कर बोले, मगर नमल ऐसे बोली जैसे इनकी बात सुनी ही ना हो सकता है मैं कुछ साबित ना कर सकूं आपके खिलाफ, मगर मुझे यकीन है आपकी शोहरत को दागदार करने में तो कामयाब ज़रूर हो जाऊंगी। जब आपकी अपनी बेटी हशाम की वालदा से ये कहेगी कि ये सब आपने कराया है तो हेडलाइन तो ज़रूर बनेगी, चाहे केस बने या ना बने। शट अप, होश में तो हो। तुम ऐसी बकवास करके तुम मेरे लिए नहीं अपने लिए मसाइल खड़े करोगी। वो धाड़ कर बोले, फिर रशीदा की तरफ पलटते हुए चिल्ला कर बोले, ये तरबियत दी है तुमने अपनी बेटी को, ये सिखाया है इसे कि प्रेस के सामने खड़े होकर अपने बाप के खिलाफ बोले। तुम्हारी जैसी अपाहिज बीवी को मैंने सारी ज़िंदगी बर्दाश्त किया, सिर्फ ये सोचकर कि मेरी बेटी को माँ की ज़रूरत है, लेकिन तुम फ़र्ज़ भी ढंग से ना अदा नहीं कर सकी। ऐसी जहनियत और नफ्सियात के साथ तो बिन माँ के भी पल जाती। अजमत खलील बुरी तरह पेचताब खा रहे थे, इसलिए वो मौजू से हट कर ज़ातियात पर उतर आए थे। असल मौजू पर कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। हस्ब साबिक वो रशीदा पर बरसने लगे थे। वो इनका गुस्सा बढ़ते ही जर्द पड़ने लगी थी। इनकी गैर होती हालत देखकर नमल सब कुछ भूल कर इनकी आवभगत में लग जाती। इस वक्त इनके मुंह से ऐसे अलकाबात सुनकर रशीदा होले होले कांपने लगी थी, मगर नमल इनकी तरफ बढ़ने के बजाय बदस्तूर अजमत खलील को देखती रही, जो वही सब दोहरा रहे थे जो वो अक्सर कहते आए थे। मगर हर बार ये सब सुनकर इसे नए सिरे से अफसोस और नए सिरे से इनसे नफरत महसूस होती थी। जब भी वो इस नफरत भरे लहजे के साथ बोली, आपने मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं किया, बल्कि मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी आपको मेरी वजह से बर्दाश्त किया है ताकि मेरी ज़ात पर कोई मुश्किल ना ले आए। इस पर वो खुद सारी ज़िंदगी मुश्किलों से भरा सफ़र तय करती रही। आपने तो इनके वजूद को भी अपनी शोहरत का जरिया बना लिया। आपने इनकी माजूरी को मेरी वजह से नहीं झेला। अरे आपको मेरी कौन सी फिक्र थी। आपने सिर्फ दुनिया को वाह वाह हमदर्दियाँ बटोरने के लिए इन्हें अपने साथ रखा। आप अपनी बीवी की माजूरी का इश्तिहार लगाते रहे ताकि लोग आप पर तरस खाएं और आपकी मिसाल दें कि कितना अजीम इंसान है। हालांकि आपको क्या ये लोग अगर जान लें कि आप पर थूकना भी पसंद ना करें। बदतमीज़। अजमत खलील का हाथ उठा था, मगर नमल बर्क रफ्तारी से पीछे हट गई और इनका वार खाली चला गया। इस वक्त रशीदा इतनी ज़ोर से चीखी कि अजमत खलील को दोबारा आगे बढ़कर इसे मारने का मौका ही नहीं मिला। नमल ने बेख्तियार रशीदा की तरफ देखा। अजमत खलील को इस पर हाथ उठाता देखकर उन्होंने अपनी व्हील चेयर से उठने की कोशिश की थी और इस कोशिश में वो ज़मीन बोस हो गई थी। नमल के तो आसान ख़ता हो गए। वो दौड़ती हुई इनके पास पहुंची और इन पर झुक गई। अम्मी, अम्मी आप ठीक तो हैं ना? अजमत खलील ने भी बेख्तियार कदम रशीदा की तरफ बढ़ाए, मगर अगले ही पल वो नखुत से सर झटकते कमरे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि वो जो चाहते थे वो हो चुका था। अब वो रशीदा खुद सब संभाल लेंगी। अम्मी, अम्मी। रशीदा को ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, मगर इस तरह गिरने पर इनकी धड़कन तेज़ हो जाने की वजह से सांस फूलने लगी थी। कुछ खजालत से भी इन्हें फौरी तौर पर कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। नमल ने सहारा देकर इन्हें उठाया और वापस व्हील चेयर पर बिठा दिया। मुलाजिम को आवाज़ देकर इनके लिए पानी मंगवाया।
جب ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی تب جا کر نمل کی جان میں جان آئی۔ وہ بے بسی سے نمل کو دیکھنے لگی، اور بس یہ وہ نظریں تھیں جو ایک بار نمل کی طرف اٹھ جاتی تو نمل کچھ کہنا تو دور درکنار کچھ سوچنے کے بھی قابل نہ رہتی۔ مگر یہ معاملہ اس کا یا اس کی ماں کی عزت نفس کا نہیں تھا۔ اس کے مجروح ہونے پر نمل عصمت خلیل کے روبرو آئی ہو، بلکہ یہ ایک نوجوان کی زندگی کا سوال تھا جو تباہ ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کی معذوری وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ اسے اچھی طرح احساس تھا بے کسی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک ایسے شخص کے لیے جس کے کندھوں پر آئندہ پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری ہو۔ نمل کچھ پہلی بار رشیدہ سے نظریں چرا گئی تو رشیدہ روندی ہوئی آواز میں بولی، کچھ نہیں ہوگا تمہارے یہ سب کرنے سے۔ تمہارے باپ کو دنیا بہت اچھا آدمی سمجھتی ہے۔ تمہارے اس بیان سے تھوڑی دن باتیں بنیں گی اور پھر لوگ یہ سب بھول جائیں گے، مگر کچھ یاد رہے گا تو بس اتنا کہ نمل خلیل نے باپ پر انگلی اٹھائی۔ ضرور اس لڑکی میں ہی کوئی خامی ہوگی۔ حشام کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب اس کے گھر والوں کو کچھ بتا کر تم ان کی اذیت میں اضافہ ہی کرو گی۔ مت کرو ایسا، لینے دو انہیں وہ پیسہ۔ پیسہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر جہاں اتنی غربت اور افلاس ہو۔ وہاں اس پیسے کے لیے لوگ کچھ بھی بیچنے اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مت ڈالو انہیں آزمائش میں، اور مت ڈالو مجھے آزمائش میں۔ تمہارا باپ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دنیا کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتی۔ مجھے سکون سے اس گھر کے کونے میں جینے دو۔ تمہارے باپ کو دنیا کے سامنے بنی اپنی شخصیت پر بڑا غرور ہے۔ اس غرور پر ذرا بھی آنچ آئی تو وہ رشیدہ بولتے بولتے ایک دم رو پڑی۔ نمل کو ان سے شدید اختلاف تھا، مگر ان کی چند باتوں کو وہ واقع نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ اس کے بیان دینے سے عصمت خلیل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ لوگ صرف چند دن باتیں بنا کر خاموش ہو جانے والے تھے۔ حشام کے گھر والوں کو جو امداد ملنے والی تھی انہیں اس کی سخت ضرورت تھی۔ عصمت خلیل سے کوئی بعید نہیں تھا کہ نمل کی اس حرکت پر وہ انتقاماً رشیدہ کو گھر سے نکال باہر کریں۔ رشیدہ کا ناتوانا وجود اس عمر میں اس رسوائی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ نمل جیسے بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی، مگر اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی اور اس کے پورے وجود کو ایک کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رشیدہ کے کندھے پر آ ٹھہرا تھا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہوئے فوراً رشیدہ کے رونے کی نوعیت میں فرق آ گیا تھا۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بے اختیار چوم لیے تھے۔ آنسو اب بھی ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر اب ان میں ملال کے ساتھ ایک تشکر بھی تھا۔ نمل نے اندر ہی اندر جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے کے باوجود محض ان کا دل رکھنے کے لیے سر اس بات میں ہلا کر اپنے قائل ہونے کا مظاہرہ کر دیا تھا۔